ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشن پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور موقع حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت، پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف دشمن جان لے آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پروقار تقریب سے خطاب۔ تحمل کی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ بھارت کو جنگ میں شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا جو ہمیشہ اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنانا ہندوستان کا خواب ہے۔ بھارت کا یہ خواب کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ دشمن کے اندازوں کا ناکام بنایا۔ مستقبل کی جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں اور ڈرون کا استعمال ہوگا۔ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ پوری قوم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہے۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں تقریب سے خطاب بولے، دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بڑا سفارتی سنگ میل ہے۔ بھارت اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکر حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ میں پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مختلف افواج کے دستوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تینوں افواج کے دستوں کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا مارکر حق کی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔
वज़ीर आज़म का मार्का हक की सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने फील्ड मार्शल की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को कलीदी करार दिया। एयर चीफ मार्शल और फजाइया के शाहीनों की महारत और सलाहियतों को सराहा। नेवल चीफ और पाक बहरिया की तैयारी और दिफाई सलाहियतों को काबिल फख्र करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। आज के दिन दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पूरी कौम शहदा, उनके अहले खाना और उनकी गाजियों को खराज अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जरूरतमंदाना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और एडमिरल नवीद अशरफ को मुतब्बराना हिकमत अमली पर खराज तहसीन पेश करते हैं। की कामयाबी का पहला साल अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मार्का हक कौमी अज़म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्ता का आईनादार है। मार्का हक की कामयाबी का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। ऑपरेशन महाफिजुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ों के महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया, जिससे आलमी बरादरी में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा गया। मौजूद हाज़रीन, आज हमें इस बात पर भी फख्र है कि कराची की आवाम ने हमेशा कौमी दिफा में अपनी अफवाज का भरपूर साथ दिया। इस शहर ने हर मुश्किल वक्त में हुब्बुल वतनी, यकजहती और कुर्बानी की मिसाल कायम की। कराची सिर्फ पाकिस्तान का मुआशी मरकज नहीं बल्कि कौमी ताकत, अज़्म और बहरी सलामती की अलामत भी है। मौजूद हाज़रीन, आज के इस मौका पर हम ये अहद करते हैं कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हम कौमी इत्तेहाद, बैनुल-अदारा जाती हमआहंगी और वतन से वफादारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हम अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आखिर में एक बार फिर मैं आप सबका आज पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जाहिर का मुंह तोड़ जवाब दिया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मार्का हक की तकरीब का खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाक बहरिया मुल्की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने यादगार शहदा पर फूल रखे। का मार्का हक के हीरोज को सलाम, अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन कहती है। 8-0 का मार्का हक दुश्मन को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। दुनिया भर में हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मार्का हक की कामयाबी पर खुशी मना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मार्का हक का दिन है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में और नीचे आखिरी सिपाही तक जिस अज़्म, जिस बहादुरी, जिस दलेरी और जिस जुर्रत के साथ अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान बनने के लिए है, पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है और पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आँख से देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। और ये दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी तजदीद अहद का दिन है कि जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान ने और बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा
अफवाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का खित्ते की ताकत होने का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर तकरीब से खिताब। वज़ीर बलोचिस्तान ने मजीद कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बलोचों ने ये फैसला किया कि वो मुल्क के साथ हैं। बलोचिस्तान में दुश्मन के कहने पर हथियार उठाने वालों का अंजाम सबने देख लिया। मेरे जाना वतनो कुर्बान मेरे सोने दिलबर है जाना मेरे महबूब। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुव्वत बन चुका है कि दुश्मन कोई भी हो पाकिस्तान पे मैली आंख से नहीं देख सकता। करते प्यार हम जिससे बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इख्तियार जारियत की है। इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। के खून में शामिल है यू कतरा कतरा पाकिस्तान सभी से। ख्वाजा पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। मेरे महबूब मैं सदके इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। ISPR के नए नग़मे ललकार का टीजर जारी। वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा। नग़मे में पाकिस्तान की जानिब से मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरबला ललकारा गया। नग़मे के शानदार बोल मार्का हक की रूह को अपने अंदर समेटे हुए हैं। नग़मे में मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिद और नाकाबिल तस्खीर है। नग़मे में पाक फौज और अवाम ने जाहिलियत और जुल्म के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की मानिंद खड़े रहने के आज़म का इयादा किया। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा कायम किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तहरीका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इराक के सहराई इलाकों में खुफिया फौजी अड्डा कायम किया। अड्डे पर इसराइली स्पेशल फोर्सेज तैनात की। अड्डा इसराइली फिजाया के लिए लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था। अड्डे पर सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थी ताकि किसी इसराइली पायलट के तैयारे गिरने की सूरत में फौरी मदद फराहम की जा सके। मार्च के आगाज में इराकी फौज अड्डे के करीब पहुंच गई थी। इसराइली फोर्सेज ने फिजाई हमले करके इराकी एहलकारों को दूर रखा ताकि अड्डे का राज फाश न हो। ईरानी टैंकर निशाना बने तो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीका को 2 टोक वार्निंग। कहा, ईरानी टैंकर्स पर हमले की सूरत में खित्ते में किसी भी अमरीकी मरकज को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी बहरी जहाजों पर हमले की धमकी भी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का दौरे अमेरिका। मियामी में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खसूसी हेल्थ स्टेबल कोर्स से मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान जंग के असरात और खात्मे से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ अमूर पर कतर के ताउन को सराहा। कतर के दिफा के लिए अमेरिकी हिमायत का अयादा भी किया। ढाका में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेश की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर शमस अब्दुल इस्लाम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मुसातिती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत ने ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मुसातिती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इत्तेफाक।